students, welcome to another new session. Today we are going to discuss about set theory, a new content, a new topic in set theory, that is the different types of set. In our previous classes of set theory, we have discussed about what is set, how to represent or present the set, that is set builder method, roster method, okay, and how to know the number of elements in a set, that is cardinality of set. Today in this session we are going to discuss in detail about different types of set. Okay, see, so students, in as we know, there are many authors having different books. So different authors conceive these types of set in different manner. Okay, so I am going to discuss, or I am going to give the types of set in a combined manner. Okay, there are some groups by which they are grouping the different types of set, clear? But now today in this session I am going to give you a brief, as a whole, the whole type of set, clear? See, the reason is grouping is not essentially required. You must know different types of set, that's it. The grouping is not necessarily required. So that's why I am not going through the groups. In certain books you find these are given in two groups, okay, but basically that is not important. So that's why I am going to give you the total number of set in a combined manner, in a one platform. Okay, एक ही साथ में सब जो भी जितने भी सेट्स हैं वो सबको आप देखोगे एक ही जगह पे. Okay, so around approx there are 19 type of set that exist in the sense theoretically and practically those are used. Okay, so what are the 19 type of set? First of all, let's know what are the sets. Then in the subsequent session we will discuss about each and every type of set. Okay, so let us first know what are the types of set. So there are, as I say, I find there are 19 types of set. 19 types are there. Okay, so those are: number one, valid set. You just write it down all in a combined manner, then we'll go through each and every set. Okay, the meaning and different example of that type of set. That is valid set, void set, finite set, infinite set, singleton set, multiton set, equal set, equivalent set, next is subset, next is superset, subset
superset, next is proper subset, then proper superset, then family set, next is power set, then universal set, then complementary set, then overlapping set, next is disjoint set, and the last one is Cartesian set. Okay, so please have a look, write down all the 19 type of set. These are the 19 type of set. Those are theoretically and practically applicable in mathematics. Okay, so we will discuss about each set in a detailed manner. First, जैसे कि ये जो out of this 19 set you can recognize the different type of set, उसका meaning क्या हो सकता है according to their name suggest. Okay, as we know what is set. First of all, set is a defined, okay, set is a well defined collection of some object or things based on a common property or common factor or any common characteristics. Yes or no? So जो भी कोई भी एक थिंग हो, ऑब्जेक्ट हो जो कि वेल डिफाइंड हो सके, वो चीजों को लेके हम जो एक ग्रुप बनाते हैं, उसको जो एक ग्रुप में रखते हैं, वो एक ग्रुप को हम बोलते हैं सेट. सो अकॉर्डिंगली वो जो मीनिंग के हिसाब से हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट क्या क्या हैं, जो कि ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेट. दैट इज वैलिड, वॉइड, फाइनाइट, इन्फिनाइट, सिंगलटन एंड मल्टीटन सेट. ओके, सो कोई कोई, जैसे कि मैंने बोला था ये जो दो ग्रुप में है, कोई कोई बुक में आपको मिलेगा कि टाइप ऑफ सेट में ये 5 ही हैं और 5 और 6 ही हैं अप टू मल्टीटन. उसके बाद जो सब है वो सब ऑपरेशंस में चला जाता है कि नहीं? दैट मीन्स द रिलेशनल. तो इसीलिए रिलेशनल दैट दोस आर आल्सो सेट. तो उसको मैंने वो अलग ना करके एक ही जगह पे उसको हम डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, दोस आर आल्सो नोन एज सेट. ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ द फर्स्ट टाइप, दैट इज वैलिड सेट. सो आई होप ये आप सब लोग ने लिख दिया होगा. तो चलो हम पहले देखते हैं व्हाट इज अ वैलिड सेट. सो वैलिड का मतलब वेरी सिंपल. वैलिड मतलब जो कि दैट satisfy each and every condition that is required to define a particular thing. जो कि हमारा सेट का जो डेफिनेशन है उसको अगर कोई एक सेट फॉलो करता है, that means it is a valid set. Okay, so as we know set is a collection of some well defined object. So a set जिसमें कि कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट. अगर सोचो कि एक सेट लूं उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो दैट इज नॉट ए वैलिड सेट, क्योंकि सेट का जो डेफिनेशन
क्या कहता है? द डेफिनेशन डिफाइंस दैट एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी देयर। ओके, एक तो एटलीस्ट मिनिमम एक भी होना चाहिए। सो वैलिड सेट का मतलब बस वही है, ठीक है, ए सेट दैट contain at least one element, और जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट और मेंबर। A set that contain at least one element, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो डेफिनेटली होना चाहिए। उससे अगर कम हो गया, अगर एक भी एलिमेंट नहीं है, एक एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या है? मिनिमम वन, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम एक होना चाहिए, है कि नहीं? उसके ऊपर वो कितना भी हो सकता है कि नहीं? सो दैट इज कॉल्ड ए वैलिड सेट, है कि नहीं? सो ये जो वैलिड सेट है, वैलिड सेट मतलब डेफिनेटली एक एलिमेंट है, क्लियर? सो वो सेट को इट इज denoted by a symbol। सेट में क्या होता है ना, हर एक सेट का एक सिंबल रहता है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हम सेट लिखते हैं, ठीक है, जब हम सेट को डिफाइन करते हैं इन देयर आर टू वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, दैट इज रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर के टाइम पे we prefer to write the symbols rather the word, है कि नहीं? तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, हर एक सेट के लिए एक सिंबल रहता है। तो ये वैलिड सेट के लिए क्या सिंबल है? वैलिड सेट के लिए हम एक ग्रीक लेटर यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? फाई बोलते हैं, है कि नहीं? सो इट इज डिनोटेड बाय ए सिंबल, by a symbol और कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, कोई भी एक कैपिटल लेटर से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, अदर देन ग्रीक लेटर, अदर देन ग्रीक लेटर फाई। इसको हम बोलते हैं क्या? फाई। रीड एच फाई, PHI, फाई, क्लियर? तो ये फाई जो है सिंबल हम यूज करते हैं किसके लिए? जो इसके बाद है वॉइड सेट। वॉइड मतलब जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई ना करें। कंडीशन मतलब क्या? कंडीशन जो कि है कि वो डेफिनेटली एटलीस्ट वन एलिमेंट इट मस्ट कंटेन। अगर वो ना हो, एक भी एलिमेंट अगर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? वॉइड सेट। तो कोई भी एक सेट ले लो जो कि अदर देन वॉइड है, तो वो है एक वैलिड सेट, क्लियर? ओके, तो आप एग्जांपल में ले लो कुछ भी, कोई भी हम लिख सकते हैं क्या? ए सेट ऑफ बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम में बैट्समैन एक भी तो डेफिनेटली, एक इंडियन क्रिकेट टीम है तो एक तो डेफिनेटली होगा ही होगा, है कि नहीं? सो दैट इज अ वैलिड सेट, क्योंकि एक से कम हो जाए बैट्समैन के वगैरह तो हम मैच नहीं खेल सकते ना, क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच है मतलब डेफिनेटली एक क्या है? बैट्समैन है कि नहीं? और ले सकते हैं ए सेट ऑफ goalkeeper in a football team। एक फुटबॉल टीम में ऐसा हो सकता है कि एक भी गोलकीपर ना हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि चलो एक गोलकीपर को अगर कोई कुछ चोट लग गया, इंजर्ड हो गया, तो डेफिनेटली दूसरा गोलकीपर आ जाएगा, है कि नहीं? सो इट इज इम्पॉसिबल। दैट मीन्स डेफिनेटली इट इज अ वैलिड सेट, क्योंकि इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते in any angle, because it definitely satisfy the condition that it definitely have at least one element, clear? So that's why we term such kind of set as a valid set, okay?
और कुछ ले लो, ए सेट ऑफ प्राइम नंबर, ए सेट ऑफ प्राइम नंबर बिलो 10 पॉसिबल है कि नहीं? 10 के अंदर बिलो 10 बहुत सारे प्राइम है कि नहीं? उसको हम कहेंगे लेट ए। क्या क्या आएगा प्राइम नंबर? जैसे कि मैंने आपको बोला था अपने प्रीवियस क्लासेस में कि नंबर सिस्टम को आप अच्छे से जान लो, है कि नहीं, कि नंबर, डिफरेंट नंबर्स क्या है, व्हाट इज ए नेचुरल नंबर, व्हाट इज ए होल नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स, है कि नहीं, व्हाट इज ए रेशनल नंबर, व्हाट इज ए फ्रैक्शन, व्हाट इज डेसिमल, है कि नहीं, व्हाट इज प्राइम नंबर। ये सब चीजों को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं? नंबर सिस्टम आप लोग स्कूल के टाइम पे पढ़े थे, आपको याद है कि ना है? गॉड नोज एंड यू नोज, हमको तो नहीं पता, है कि नहीं? तो फिर भी मैं क्या करूंगा, एक क्लास में ये सब चीजों को आपको फिर से मैं समझा दूंगा, है कि नहीं, कि ये सब है क्या। क्लियर है कि नहीं? तो उससे पहले मैं आपको टाइम भी दिया हूं, ठीक है, जो प्रीवियस क्लासेस में मैं बोला था कि आप लोग ये सब चीजों को अच्छे से देख लीजिए, अपने तरफ से कोशिश कीजिए, उसके बाद ये चीजों को मैं आप लोगों को डेफिनेटली बोल दूंगा, क्योंकि सेट थ्योरी में ये चीजों का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है कि नहीं? दीज आर कंबाइनली और फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन सेट थ्योरी, ठीक है, बहुत सिंपल है कि नहीं? चलो उसको अभी हम नहीं देखते हैं। तो ए प्राइम नंबर मतलब ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड बाय इटसेल्फ, जो कि 2 और खुद से डिविजिबल हो सकता है। क्लियर? सो उससे क्या आएगा कि क्या आएगा, डेफिनेटली जैसे आप लोगों को मालूम है, ये मैं आपको अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको सबसे पहले देखना है कि प्राइम नंबर होता क्या है, वो अपने तरीके से आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 नंबर को नंबर सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो सो these are called a valid set। सो आपको पता है कि डेफिनेटली अगर प्राइम नंबर हम लेंगे 10 से बिलो तो डेफिनेटली 2-3 प्राइम नंबर डेफिनेटली आ जाएंगे। सो दैट इज ए वैलिड सेट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है? वैलिड सेट के बाद देन द ऑपोजिट ऑफ वैलिड सेट, दैट इज ए वॉइड सेट। ऑपोजिट ऑफ वैलिड सेट, ऑपोजिट ऑफ वैलिड सेट मतलब मैंने क्या बोला कि एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, दैट इज ए वैलिड सेट। एक और एक से ज्यादा, बट अगर एक भी एलिमेंट ना हो तो दैट इज नॉट satisfy द कंडीशन, द definition ऑफ सेट। So that's why we call that set as a void set। That means जैसे कि आप लोग लॉ में पढ़े हो, जो कि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है उसको हम void कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। So that is also a void set। मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, not even a single element। Okay, a set that does not contain, clear, does not contain at least one element। A set that does not contain at least one element, एक भी एलिमेंट ना हो। in other word a set that has no elements in it, is termed as a void set। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं void set। क्लियर? इसका
और भी बहुत सारे नाम हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, void set. It is also called as void set के साथ हम उसको और क्या क्या बुलाते हैं, उसको हम बोलते हैं null set और empty set. null set, empty set और void set. null मतलब नील, जिसका हम बोलते हैं नील, NILL. नील जैसे बोलते हैं ना, हम अकाउंट्स में करते हैं जिसका फिगर कुछ भी ना हो तो उसको हम नील बोलते हैं. तो इधर हम उसको क्या बोलते हैं, नल मतलब नल्ला, जिसका हम बोलते हैं ना नल्ला, कुछ भी नहीं है, नो प्रॉपर्टी, नो एलिमेंट, नल पूरा बेकार है कि नहीं. और एम्प्टी और void set. ओके, क्लियर. देन तो इसको मतलब ये पता चल गया कि void set मतलब जिसमें कि एक भी एलिमेंट ना हो. ओके, तो अभी होता है क्या, इट इज डिनोटेड, जैसे कि हमने देखा, इट इज डिनोटेड बाय ए ग्रीक लेटर दैट इज फाई. इसको हम पढ़ते हैं क्या है, फाई, PHI, फाई. फाई मीन्स नल सेट. ओके, फाई का मतलब है नल सेट, जिसमें कि एक भी एलिमेंट ना हो. ओके, ठीक है. तो जो नल सेट रहता है उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, क्लियर. नल सेट फाई इज इक्वल्स टू नथिंग. देखो हम क्या करते हैं, सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, इन कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है, कि सोचो कि अगर वो होता 1 2 3 तो हम ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं. अभी क्या है, इसमें इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट नहीं है, दैट इज डिनोटेड एज फाई. कोई भी. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैटर है कि इफ आई राइट लाइक दिस, इज इट ए void set. हम बोलेंगे ये एक void set है क्या, नो, दिस इज नॉट ए void set बिकॉज इसमें एक एलिमेंट है फाई. फाई इज आल्सो एलिमेंट, है कि नहीं. फाई इज आल्सो एलिमेंट. कैसे, वो हम देखेंगे आगे के जब क्लास में हम और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, उस वो टाइम पे हम देखेंगे ये एग्जांपल कि ये जो है ना फाई, फाई इज आल्सो ए एलिमेंट इन ए वैलिड सेट, है कि नहीं. फाई मतलब कुछ ना लिखना भी एक एलिमेंट है सेट में, है कि नहीं. तो अगर हम ये लिख दिए तो डेफिनेटली एक एलिमेंट आ गया फाई, नल, तो वो दैट इज नॉट ए void set. void का मतलब नो एलिमेंट्स, कोई भी एक एलिमेंट उसके अंदर ना हो. ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि void set क्या हो सकता है, ए सेट ऑफ ऑल राउंडर्स इन ए क्रिकेट टीम. एक क्रिकेट टीम में ऑल राउंडर्स. सो ये इसका चांसेस है कि ये एक void set हो सकता है, क्योंकि देयर इज नो गारंटी कि डेफिनेटली एक ऑलराउंडर हो. ऐसा हो सकता है कि 7 बैट्समैन है 5 बॉलर हो, और 7 बॉलर हो 5 बैट्समैन हो, है कि नहीं. तो हो सकता है. सो वी कैन कॉल दैट एज ए void set, क्योंकि एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है. ठीक है. और जैसे ले लो कि x is a element of real number. x is a element of real number, है कि नहीं. रियल मतलब जो कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, such that x square is equal to -2. x square is equals to -2. x is a element of real number such that x square is equal to -2. ये हो सकता है क्योंकि कोई भी एक पॉजिटिव आइटम का स्क्वायर निकालो, कोई भी एक ले लो, रियल नंबर, रियल मतलब पॉजिटिव नंबर्स, 1 लो, 2 3 4, किसी का भी अगर आप स्क्वायर ले लो तो डेफिनेटली -2 तो नहीं आएगा. सो दैट मीन्स this condition is not satisfied. It means if we going to satisfy this condition, we can find 0 element, no element in that set. That's why that set is called as a void set.
Clear? Okay, and void set is denoted by this symbol, that is phi. इसको हम क्या बोलते हैं? phi बोलते हैं, phi. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं द थर्ड वन, दैट इज फाइनाइट सेट. तो ये वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि जैसे कि मैंने आपको बोला है एक सेट है. सेट के मतलब हम कितने एलिमेंट्स लिख सकते हैं? मिनिमम एटलीस्ट वन एलिमेंट. एटलीस्ट वन एलिमेंट हो तो वो हो जाता है वैलिड. अगर एक भी ना हो तो वो हो जाता है वॉइड. सोचो कि एक से ज्यादा हो, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल कि एक सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हम ले सकते हैं. तो वो जो एलिमेंट्स हैं, इफ द कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज काउंटेबल, हम गिन सकते हैं, जान सकते हैं कि वो सेट में कौन सा एलिमेंट है. क्लियर? इट इज difficult or not difficult, it is simple to know, to recognize the number of element, the cardinal number of element in that set, then that set is called as finite. जिसका हम बोलते हैं ना finite, मतलब एक लिमिट है, एक लिमिट है, एक लिमिट में है. the number of element is in a limit. 10 है, 20 है, 1000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, 1 मिलियन है, कुछ भी है. एक लिमिट अगर हो जिसको हम जान सकें, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकें, दैट इज ए फाइनाइट सेट. बट इफ देयर इज नो लिमिट, इफ देयर इज नो लिमिट, देन दैट इज ए इनफिनाइट सेट. है कि नहीं? दैट इज ए इनफिनाइट सेट. जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ये सब चलता रहता है, इसका तो कोई एंड नहीं है. हम बोल सकते हैं कि 1 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन. ट्रिलियन से खत्म हो गया क्या नंबर सिस्टम? नहीं, उसके बाद और चलता है मिलियन, बिलियन. ये जो तीनों हैं, 3 टर्म जो हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये इसको मिला के भी आप आगे बढ़ सकते हो. है कि नहीं? कि 1 मिलियन ट्रिलियन, 1 बिलियन ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन ट्रिलियन, हो सकता है कि नहीं? So according to number वो बढ़ता जाएगा. So that is definitely a infinite set. Clear? तो चलो देखते हैं सबसे पहले finite set. Okay? So जैसे आपको आ गया, समझ में आ गया कि finite set मतलब a set that contain limited number of element or finite number of element which can be countable. That is known as a finite set. A set is called a finite set if it is either a void set or its element can be listed or counted by natural numbers. If it is a void set, जो बोला either a void set, अगर void set हो तो that is also a finite, क्योंकि void is a finite, नंबर नहीं है उसके पास, कुछ भी नंबर नहीं है. So a void set, है कि नहीं? A void set is also a finite set. Clear? ये सब चीजें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि ये हो सकता है. Yes, हो सकता है. A void set is also defined as a finite set. Okay? A set is called as a finite set if it is either a void set, if it is either a void set or its elements are limited, and can be enlisted, जिसको हम एनलिस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि उसमें क्या क्या आता है. That is a finite set. So a void set is also a finite set because it has limited number of element, that is no element. So void set is also a finite set. Clear? So a
क्लियर? आ गया समझ में? फाइनाइट सेट इज अ सेट वेदर either a void set or the element limited. क्लियर? और जिसका एलिमेंट लिमिटेड हो. In other word, a set which has limited number of elements which are countable, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, is known as a finite set. उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं. ओके? And as usual, it is denoted by any capital letter other than phi. क्योंकि phi का मतलब है only void. Phi is used only for void. ये जो है phi का सिंबल, that is used only for void set. Other than that, और किसी में भी हम ये सिंबल को यूज नहीं करेंगे. ठीक है? तो इसका ऐसा कुछ सिंबल नहीं है, इसको हम कैजुअली ऐसे ही लिखते हैं फाइनाइट सेट. कुछ भी ले लो, है कि नहीं? तो ले लो. क्या एग्जाम्पल? A is equals to 1 2 3 4 5, so that is a set with a finite number of elements, that is 5 elements, है कि नहीं? Let B x such that x is a element of P for prime number. Okay, P for prime number such that x is a prime number, such that x is a element of prime number below 100. 100 से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं, तो डेफिनेटली इट इज ए फाइनाइट सेट, है कि नहीं? क्योंकि 100 के बिलो में क्या क्या प्राइम नंबर आता है वो सबको हम फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं? क्लियर? सो उसको हम बोलते हैं क्या? दैट इज ए फाइनाइट सेट, जिसका नंबर कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, कार्डिनलिटी ऑफ सेट. इफ वी कैन फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, दैट इज ए फाइनाइट सेट. ओके? नेक्स्ट, इसका ऑपोजिट है इनफिनाइट सेट. बस थोड़ा चेंज कर देते हैं, है कि नहीं? ए सेट whose elements cannot be enlisted or counted. A set is called as a infinite set, if the number of elements in that set is uncountable, or unlimited, cannot be enlisted. ओके, हेडिंग चेंज करना भूल गए. हाँ, इनफिनाइट सेट. ठीक है? तो जिसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर हम उसको प्रिडिक्ट ना कर पाए, काउंटेबल ना कर पाए, अनलिमिटेड हो, सो वो सेट को हम क्या बोलते हैं? इनफिनाइट सेट. ओके? जिसके की नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड हो. एग्जाम्पल ले लो कि अगर हम इसे इधर लिख दें 6 7 ... इसका मतलब क्या है? इट्स अ कंटिन्यू, है कि नहीं? और ले लो C is equal to a set of whole number, or a set of integers, है कि नहीं? और इसको अगर हम बोले
x such that x is the element of p, p for prime number, बस इतना ही, is the element of p. So नंबर सिस्टम में कितने प्राइम नंबर हैं? देयर इज नो लिमिटेशन. जैसा कि नंबर बढ़ता जाएगा प्राइम नंबर भी बढ़ता जाएगा, उसका कोई भी लिमिट नहीं है कि नहीं? तो वो भी चलता जाएगा, उसको हम बोलते हैं इनफिनाइट सेट. क्लियर? ओके, आ गया समझ में? देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनाइट इनफिनाइट के बाद नेक्स्ट इज अ सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सिंगलटन, ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, जिसमें कि सिर्फ एक ही एलिमेंट हो और कुछ ना हो, ओनली वन एलिमेंट. ए सेट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट. A set consists of a single element only. Single element only is called a singleton set. ठीक है? तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, एक ही एलिमेंट हो, है कि नहीं? एक ही एलिमेंट. क्लियर? एग्जाम्पल ले लो कुछ भी. लेट a is equals to 1, that is a singleton, एक ही नंबर है. ओके. b is equals to 5, इसमें भी एक ही एलिमेंट, 5 is एलिमेंट, 5 है. और मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, है कि नहीं, कि किसमें एक ही एलिमेंट आता है कि नहीं? और कुछ ले लो, जैसे कि हम ले सकते हैं अपने प्लैनेट सिस्टम में, है कि नहीं? वी हैव कितने 9 प्लैनेट्स है कि नहीं? तो उसमें किसका नाम एस, एस से क्या क्या आता है? सन, है कि नहीं? ओनली सन. सैटर्न भी है, तो उसको हम नहीं बोल सकते कि ए सेट ऑफ प्लैनेट स्टार्ट्स विथ एस, नहीं होगा, क्योंकि सन भी है सैटर्न भी है कि नहीं? तो ऐसा एक एलिमेंट, मतलब ऐसा एक सेट जिसमें कि एक ही एलिमेंट हो, है कि नहीं? और ले लो, लेट p इज इक्वल्स टू सन, ओनली सन, है कि नहीं? और ऐसे लिख सकते हैं कि ए सेट ऑफ मंथ्स in a year consist, a set of months in a year consist only 28 days. ये हो सकता है only February, तो एक ही आ जाएगा, that is a singleton set. So a set which has only one element, एक ही एलिमेंट हो जिसमें, उसको हम बोलेंगे सिंगलटन. अगर एक भी ना हो तो उसको हम बोलेंगे वॉइड सेट. ठीक है? उसका ऑपोजिट है मल्टीटन. सिंगलटन का ऑपोजिट, अगर एक ही एलिमेंट है तो सिंगलटन, एक से ज्यादा है मल्टीटन. क्लियर? आ रहा है समझ में? ये हो गया सिंगलटन. देन आ गया 4, 5, 6 मल्टीटन सेट, है कि नहीं? मल्टीटन मतलब ए सेट दैट अट्रैक्ट मोर देन वन एलिमेंट. ए सेट दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट. एक से ज्यादा अगर हो, मोर देन वन एलिमेंट्स, इज कॉल्ड एज ए मल्टीटन सेट. उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीटन सेट उसको हम बोलते हैं. एग्जाम्पल, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, मोर देन वन. ठीक है? वन जैसे लिखा था 1, 2 सन और सैटर्न, है कि नहीं? और ले लो कि द नंबर ऑफ मंथ्स कंसिस्ट ऑफ 31 डेज, तो वो भी आ जाएगा,
एक से ज्यादा, है कि नहीं? तो ये सब को हम बोलते हैं क्या? मल्टीटोन सेट। ओके, क्लियर? सही है। सो आज के सेशन में हम इतना ही देखेंगे, सिंगलटोन और मल्टीटोन तक। क्लियर? आउट ऑफ 19 एलिमेंट्स, 19 टाइप ऑफ सेट, we have completed 6. In the next class we will discuss the other types of set. Thank you.